یہ ہے وقت میڈیا۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ ملک ہندوستان ہے۔ جس ملک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، خوش نصیبی سے وہ ہمارا ملک ہے، وہ ہمارا وطن ہے، جس مٹی سے ہمارا تعلق ہے، جس مٹی میں ہم پیدا ہوئے، جہاں سے ہمارا جذباتی جڑاؤ ہے، جس مٹی سے ہمارا ماں بیٹے کا رشتہ ہے۔ یقین جانیے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں رہ کر آپ دیوبند میں ہیں، میں کسی اور شہر میں ہوں، تو یہاں رہ کر تو ہم ہندو مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ہندوستان کی سرحدوں سے باہر جاتے ہیں، وہاں جا کے کوئی ہندو نہیں رہتا، کوئی مسلمان نہیں رہتا، کوئی سکھ اور کوئی عیسائی نہیں ہوتا، وہاں سب کی پہچان صرف ہندوستانی ہونے کی ہوتی ہے، اور یہ بات میں پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ابھی ایک مشاعرہ تھا، میرے خیال سے شبینہ اس مشاعرے میں تھی، کویت یا قطر کا وہ مشاعرہ تھا، اور اس مشاعرے کو جب میں نے شروع کیا، میرے سامنے ہندوستان کے مختلف مذہبوں کے ماننے والے لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے جب مشاعرہ شروع کیا تو میں نے کہا کہ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے۔ نجمی بھائی، میں نے مشاعرہ یہاں سے شروع کیا کہ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے۔ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے۔ نماز عید کی پڑھ کے میں ڈھونڈتا ہی رہا، کوئی ملے یہاں اپنا گلے لگانا ہے، کوئی ملے یہاں اپنا گلے لگانا ہے۔ اور خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے، ستم یہ ہے کہ مجھے خیریت بتانا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ ملک کی سرحدوں سے باہر ہوتے ہیں، تب اپنی مٹی کی بڑی یاد آتی ہے۔ اور یقین جانیے، ایک منظر آپ کے سامنے، سچا منظر بتا رہا ہوں، اسی کویت یا قطر کے مشاعرے میں، مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے، یا تو کویت کا تھا یا قطر کا تھا، ایک گیت پڑھنے کے لیے میں نے شبینہ کو بلایا۔ شبینہ نے وہ گیت شروع کیا۔ سچائی کے ساتھ میں بتاتا ہوں، اور میری بات کی تائید کریں گی شبینہ، کہ جب وہ گیت پڑھنا شروع ہوئی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ منظر تھا کہ اس آڈیٹوریم میں جتنے ہندوستانی بیٹھے تھے، سب کی آنکھیں برس رہی تھیں، وطن سے محبت کا گیت پڑھا جا رہا تھا۔ آنکھوں کی برسات کے بیچ پلکوں کے بھیگی پلکوں کے ساتھ یہ گیت سنا گیا۔ آج دیوبند کے لوگ اس گیت کا کیسے استقبال کریں گے، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے 4 مصرے پڑھ کے محترمہ شبینہ ادیب کو مائک پر بلا رہا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تیرا ہے، نہ تیرا ہے، نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ جناب ادے پرتاپ جی کی یہ 4 لائنیں میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ مجھے ایک خوبصورت سا گیت آپ کو سنوانا تھا۔ میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے، یہ وہ گیت ہے کہ آپ کے اندر کا ہندوستانی پورے جوش کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ اس مشاعرے میں موجود ہوگا، یہ یقین ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں محترمہ شبینہ ادیب کو، میں کس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا، کفن کے ایک ایک کونے پہ ہندوستان لکھ دینا۔ حاضر ہوں محترم آدرنیہ ایس ڈی ایم صاحب، کوتوال صاحب، سی او صاحب، اور اس عظیم شہر کے دیوبند کے صدر صاحب کا بھی ذکر کیجئے۔ ہمارے اپنے صدر صاحب، بس صدر محترم جوہر صاحب، بس اب خوش ہیں؟ ہاں بالکل، یہ اچھی بات ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں جب اس سرزمین دیوبند میں میری حاضری ہوتی ہے۔ یقین جانیے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ فخر تو جب محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ ندیم بھائی نے ذکر کیا وطن کے نغمے کا۔ یقین جانیے میرا ہندوستان کے باہر بہت جانا ہوتا ہے،
चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो। नदीम भाई, एक बात और बता देना चाहती हूँ कि मैंने वतन का नगमा सिर्फ कुवैत और बहरीन और दुबई में नहीं पढ़ा है। मैं जब अमेरिका जाती हूँ और वहाँ जाकर सिर्फ एक यही नारा लगता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि हम कितने अजीम मुल्क में रहते हैं। आप YouTube पर सर्च कर देख लीजिएगा शबीना अदीब को, तो आपको वतन के नगमे, चाहे अमेरिका हो, चाहे बहरीन हो, चाहे दुबई का वो मुशायरा हो, रिपब्लिक डे भी अगर हम मनाने जाते हैं और उसका मुशायरा पढ़ने जाते हैं तो वो भी दुबई में पढ़ने जाते हैं और वतन का नगमा दुबई में पढ़ते हैं। मुझे आवाज़ दी गई है, इस मुशायरे को मुशायरा बनाने की कोशिश करें और एक नई तारीख रकम करें। यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, वतन का नगमा पेश करती हूँ। जितने भी डाइस पर लोग बैठे हैं, मैं चाहती हूँ सभी की पूरी तरह से शिरकत हो जाए और आप सबकी दुआएं मुझे मिल जाए। सर सुनिएगा, आप सबको शरीक करती हूँ, वतन का नगमा आप सबकी खिदमत में पेश करती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा, इरशाद सुने। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, क्या कहना, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। तालियां थोड़ी सी कमजोर लगी। हिंदुस्तान के बाहर होते हैं तो हमें बहुत तालियां मिलती हैं वतन के नगमे पर, और हम अपनों के बीच में हैं तो और ज्यादा मोहब्बतें होनी चाहिए, और ज्यादा शरीक होंगे तो लगेगा कि हाँ वाकई हम वतन के नगमे को कितनी अकीदत और मोहब्बत के साथ सुनते हैं। फिर से पढ़ती हूँ और आपकी मोहब्बतें चाहती हूँ। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीं है, ये शहीदों का चमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बंद पढ़ती हूँ कि सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं। वाह 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 वाह, शुक्रिया। सारे संसार में ख्वाबों का चमन, डाइस पर भी जरा सा शरीक हो जाएं, लगे कि देवबंद का वही मुशायरा है जो हमेशा एक नई तारीख रकम करता है कि सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं, इसके हर शहर में एहसास जवां होता है, इसके हर शहर में एहसास जवां होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमा होता है, अपने भारत की ज़मीं इतनी हंसी जैसे दुल्हन। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, वाह वाह वाह, ये वतन मेरा वतन। शबीना आपने एक बंद पढ़ लिया, जरा सा दम ले लीजिए। हाँ, मैं ये जो पीछे सोफे पे बैठे हुए लोग हैं इनको जरा सा मैं इनका एक थर्मामीटर लगा के इनका टेम्परेचर चेक कर लूं। ये मेहमानी मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए अक्सर आप किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ एक पोस्टर लगा होता है छोटा सा कि सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। मैं अपने शायर साथियों को बताना चाहता हूँ कि सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। ये मुशायरा इन YouTube चैनल्स के जरिए, इस रिकॉर्डिंग के जरिए दुनिया भर के तमाम मुल्कों में देखा और सुना जाएगा, और जब मुशायरे में ये देखा जाएगा कि सामईन में एक एक शख्स बेदार था और डाइस पर बैठे हुए लोग जो सोफे पर बैठे थे वो पता नहीं किस बात में गुम थे, या तो उन तक आवाज नहीं पहुंच रही थी या शायरी उनको अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर लोग आपके बारे में गलत गुमान करने लगेंगे। इसलिए अपनी बेदारी का सबूत दें। शायरी आपको अच्छी लगे या न लगे, सोफे का हक अदा करें और शायर के साथ जुड़े रहें। आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथ कम से कम उठते रहने चाहिए ताकि लगे कि आप सो नहीं रहे हैं। जोरदार ताली बजा के इन सोफे वालों का इस्तकबाल एक बार कर दीजिए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा
वतन वाह। बंद मुलाहजा करें, इरशाद। आप भी सुने। अब ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, सिर्फ मुशायरा अपना मत खराब करिए और आप सुनिए मुशायरे को कि इस पे कुर्बान सभी, आहा। इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, सभी कौमों के जवा इस पे निगहबान हुए, सभी कौमों के जवा इसके निगहबान हुए, इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह, वाह। रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, मिलके सब उठे तो, मिलके सब उठे तो पहना दिया गोरों को कफन। वाह 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 वाह। ये वतन मेरा क्या कहना, क्या कहना? ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। वाह 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 वाह। बंद पढ़ती हूँ, इरशाद। मुलाहजा करें, देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, अता करें। शुक्रिया। कि काबे वाले कहो आहा। उनको नाश वाले वाले, वाह वाह वाह। काबे वाले कहो उनको नाश वाले वाले, थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले, थे सभी भारती वो जान लुटाने वाले, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, वाह, वाह, वाह। वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, फूल की तरह, फूल की तरह महकते हैं शहीदों के बदन। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर। ये क्या वतन कहना, क्या मेरा कहना? वतन, ये वतन मेरा वतन। शुक्रिया। वाह, वाह। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। आखिरी वाह, बंद पढ़ती हूँ, इरशाद। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है शरीक करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप सब ने बेहद खूबसूरत माहौल मुशायरे को दिया और मुझे अपनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाजा। पेश करती हूँ बतौर खास, सुने कि दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजा सूफी के लिए, क्या कहना? दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजा सूफी के लिए, वाह। कृष्ण गौतम के लिए मथुरा काशी के लिए, कृष्ण गौतम के लिए मथुरा काशी के लिए, सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है, सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है, लपे गीता भी है और सीनों में कुरान भी है, लपे गीता भी है और सीनों में कुरान भी है, अमन के प्यार के, अमर के प्यार के बहते हैं यहाँ गंगो जमन। वाह। ये वतन मेरा वतन, वाह, 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 ये वाह। वतन मेरा वतन, वाह, ये वाह, वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की जमी, ये मोहब्बत की जमी है, ये शहीदों का चमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। अच्छा अच्छा। शबीना अदीब साहिबा से आपने हुब्बुल वतनी से भरपूर ये खूबसूरत सा गीत सुना, आपका शुक्रिया। शबीना की कुछ फरमाइशें लोगों ने की है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब शबीना अपने मौके पर पढ़ने के लिए आएंगी तब वो गज़लें और वो गीत पढ़ेंगी जिन गीतों के लिए आपने उनसे फरमाइश की है। मेहमानान में जनाब डॉक्टर रहमान अब्बास एहसास साहब जो बिजनौर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान की
की मौजूदगी में ये मुशायरे के गजल के दौर का आगाज अब मैं करने जा रहा हूँ। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।